there's dance, there's Zumba, there is a crafting session, biking session. यहाँ पे सबसे best चीज़ है that learning is absolutely free, no fees, nothing doing. वेल जो हमारे क्लब का मोटो है स्वस्थ रहो मस्त रहो. Welcome back to yet another episode of IBS Dehradun podcast. Today we have the Philosia Club with us, which is the health and fitness club of IBS Dehradun. Joining us today we have the faculty coordinator Dr. Hansini Prini ma'am, as well as the student coordinators Mr. Dharmesh and as well as Ms. Ananya. Today we will know about the tips to maintain a well-being life and how to be mentally well in this dynamic atmosphere. So let's get started, ma'am. So, ma'am, what inspired you to create this Philosia Club? Okay, so basically there was one of my students, very dynamic, Drishti Bhalla. She came up with this idea that, ma'am, nowadays there's a lot of stress, we have a lot of monotonous life, and students usually come in class, stay there for say 8 to 9 hours, study and then go back. So for the overall development of a child, and specifically to cope up with the stressful environment, not only in this place but also when you move out in the corporate, it was necessary, we thought, to come up with a club that makes them happy, reminds them of good times. So we thought of Philosia, where it was like a giant big hug to everyone, to just live a little, be happy. Oh, so ma'am, as I am also a member of Philosia Club, so previously I've heard very wrong pronunciation of Philosia. So what is the correct pronunciation I of know it? some people call it Philotia, some people call it God knows what all names I cannot even speak. But yes, it is Philosia. So ma'am, how do you define Philosia? Well, Philosia for me, see, each one of us have a different meaning and a connect with Philosia. For me, it is a place where, a platform where people are coming together, being very happy, learning something new every day. Like I said, it is a big giant hug to remind you to be happy. As well, I would like to ask you, all of you too, that what is your connect to the club? How it connects you with health and fitness? Actually, for me, it is more like I'm connected. Actually, I am into cultural things, and also I do like organizing events as well. So whenever there's an event, I'm very excited about it. So it's like, and mostly I still remember the day when Drishti Di first, she asked me, what are you interested in? I was like, everything. I was like, whatever it does, I'm interested. Just I'm gonna go for it. So it's Philosia for me. मेरा इंटरेस्ट फिलोशिया के लिए तब से बड़ा है जब से पहली बार जब मैंने नोटिफिकेशन देखी कि फिलोशिया क्लब में आ रहा है मतलब गरबा सेशन. मतलब पहले बहुत सारे सेशंस हुए, डांस के हुए, जुम्बा, बट और कोई सेशन में उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. बट जैसे ही गरबा आया, एंड फ्रॉम गुजरात से हूँ तो ऑलरेडी मैं गरबा को नाम सुन के वैसे ही एक्साइटमेंट में आ जाता हूँ. तो तब से फिलोशिया के साथ मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, और अब तो ऐसा हो गया कि मतलब फिलोशिया एकदम दिल से जुड़ चुका है मेरे साथ. He was the first person from the juniors who had come for sessions, और ये अकेला बिल्कुल रेडी होके सबके साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में, used to come in every session. फिर उसके बाद things changed completely. Nice. So ma'am, this Philosia Club started last year only, Yes. last year. Yes. So what were your main envision? What was the club envision? See, at the starting point, we were not thinking that it will turn into something where children will be so interested, or even some of us had gone for different sessions, the teachers also. The idea was very clear from the beginning that it has to be a platform where everyone can come and connect, can learn from each other. In Philosia, basically, if he's good in Garba, he will take a session and any child or any faculty can come there and learn it. We are paying enormous money
outside for even a single session. Like you go for Pilates, I think for even 10 to 12 sessions they are asking for 10,000 to 12,000. Now children here who are into fitness, who are into different dances or any other activity that can refresh your mind, they are teaching you for free. And what is happening is, beside that, the overall development of the children is happening. The interpersonal skills are becoming better. You are learning to work in team and you are learning a new skill. So this is the whole concept of Philosia. Not just health and fitness, I would say, but to overall development of the child is taking place. Okay, ma'am. So, ma'am, what are the different activities does the club offer? Well, there's dance, there's Zumba, there is Crafting session. crafting sessions, Crafting there's session. hiking sessions, there's swimming sessions. जो जाते हैं आराम से 6 घंटे के लिए, and they are in pools. So there are many sessions like this. All the things that student knows and they are ready to impart with others. Even we are coming up with more sessions, Yes. many I more think things. last year we did around 50 sessions, and this year we have done already around 20-25 till now. Yes. We've already completed 20-25 sessions for IBS students and faculties. So, as we all know that we all have a stressful life this time. So, how do you all incorporate like nutrition education in the activities? Actually, just what I said right now, that we are coming up with more sessions. So we are thinking of coming up with videos for our social media page, like cooking sessions. Like how can you just, like with minimum things you can cook something that is very much nutrition for you. Yes. So we are thinking of incorporating that. So let's see. बेसिकली यहाँ पे बच्चों का काफ़ी ट्रबल रहता है ना कि खाने को नहीं मिलता, घर से बाहर है, बाहर है। तो आपके लिए न्यूट्रिटिव न्यूट्रिशन फॉर हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट, मेंटली फिट. तो बेसिकली हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि वीकेंड्स पे हम लोग ऐसी मील प्रेप्स करेंगे छोटी छोटी, जो बिल्कुल मिनिमम इंग्रेडिएंट्स में आपको हैप्पी रख सके, फुलफिल रख सके, easily available. इजीली अवेलेबल हो. वैसे So that's how we are incorporating this. Nutrition education. Yes. Okay, great. So, any fitness, as we have stated Philosia as the health and fitness club. So, what are the fitness activities that are planned for, like upcoming fitness activities by Philosia? See, upcoming, actually we are already into yoga and Zumba. There are fitness sessions, CrossFit sessions, and for the upcoming event, we have a seminar planned in October where expert is going to come and he's going to talk about the mental health well-being. Beside this, all our activities, be it crafting, be it your dance sessions, be it Zumba sessions, yoga sessions, or strength training sessions, all are directed towards fitness. Okay, wait. हाँ मैम, भैया सर, मैंने आप लोगों को जैसे बताया अभी कि मैं भी फिलोशिया की मेंबर हूँ, तो जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं फिलोशिया में आने के लिए, तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे स्टूडेंट मेंबर्स बन सकते हैं? फिलोशिया क्लब एक तो टोटली वॉलेंटियर बेस्ड क्लब है. जो कोई भी IBS डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स हो, फैकल्टीज हो, सबके लिए ओपन है. वो सेशंस जब भी हम कंडक्ट करते हैं तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन हर ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं उसकी, तो सबको मतलब डिटेल्स मिल जाती है कब सेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो वो उस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो हम गूगल फॉर्म्स वो शेयर करते हैं. अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो लाइक फिल करो, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो वो करो. एंड जैसे कि लाइक एग्जांपल, कल ही मुझे मेरे पास फिलोशिया का सोशल हैंडल है, सो कल ही मुझे अचानक एक मैसेज आया एंड ही वाज लाइक मैं इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कोऑर्डिनेट करूँगा ये वो, प्लीज़ मुझे ले लो फिलोशिया में. लाइक ठीक है, मैं आई विल टॉक टू यू टुमारो अबाउट इट. एंड फिर हम बात करते हैं. तो ऐसे हुआ, मतलब ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस तुम लाइक नहीं तो कोई फिर सेट वे नहीं है. हाँ. बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, इट इज फॉर ऑल. आपके पास नोटिफिकेशंस जाते हैं, कोई ऐसा सेट प्रोसीजर हार्डकोर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है. हर बच्चा इसका पार्ट है, हम ये मान के चलते हैं और ये हर बच्चे के लिए है. तो इसमें कोई ऐसे पार्टिसिपेशन के लिए फीस इन्वॉल्व होती है? नो नो नो, जीरो फीस. जीरो फीस.
यही खूबसूरती है इस चीज़ की कि बाहर आप ये सब चीज़ें जाके बहुत लाइक आई सेड कि एक पिलाटीज का सेशन अगर आप लेते हो महीने में हाँ। 12 तो आप 10 से 12,000 दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे वही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वही सेशंस के बच्चे जो हार्डकोर इन चीज़ों में हैं वो आपको फ्री में सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ है दैट लर्निंग इज एब्सोल्युटली फ्री, नो फीस, नथिंग डूइंग। सो मैम जैसे अब यहाँ जो मेंबर्स हैं जो अभी जो जूनियर फर्स्ट ईयर मेंबर्स आए हैं, तो आप लोग उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की, क्या वो अपना कैलिबर रखें, क्या वो कंट्रीब्यूट करें, आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे? वेल मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले वाले जो बच्चे और उनसे भी जो पहले वाले बच्चे हैं उन्होंने बार बहुत हाई सेट किया है, ठीक है। 50 सेशंस हुए हैं, इन लोगों ने अभी एक सेमेस्टर में अराउंड 25 सेशन ऑलरेडी कर लिए हैं। एंड अनलाइक एनी अदर क्लब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ती हैं चीज़ें। वाई? बिकॉज ये वॉलंट्री है, हम पकड़ पकड़ के किसी को नहीं बैठाते। बच्चा अपने आप सीखना चाहता है, आना चाहता है, तब ही इसके सेशंस कंडक्ट होते हैं। और इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लाइक मैं इंटरव्यू नहीं करती ज़्यादा सेशंस में बिकॉज ना हमें इतना टाइम मिल पाता है, लेकिन वी डिस्कस अबाउट इट, बट दीज आर द पीपल हु आर हैंडलिंग। तो आपके इंटरपर्सनल कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, सब हैंडल करना होता है। सो एज दिस यू बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, व्हेन यू बिकम अ सीनियर, आई वुड रियली लाइक कि आप इतने सारे बच्चे हो तो कम से कम 50-60 बच्चा तो लाइंड अप होना चाहिए कि 2 महीने के लिए आज ये सेशन लेगा, आज ये बच्चा सेशन लेगा, कल ये लेगा। और अपने जूनियर्स को भी आप इसके बारे में बताएं और उनको लाएं। कितने बच्चे हैं जो आप ही की क्लास में फेंट हो रहे हैं, हाँ। तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, बिकॉज आप मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या है आपका सेशन बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। सेकेंड ईयर में 5:40 तक हमारी क्लासेस होती हैं, तो आप फ्रेश कब होगे? घर जाके सो जाना है खा पी के, देन इट विल बिकम अ वेरी मोनोटनस लाइफ। So my expectations, you people being so nice and enthusiastic about all the activities till now I've seen, I expect the bar is going to be extremely high. Those are my expectations. Okay, ma'am. So, what are the different dance style forms that in Philosia we have done or we are doing? फिलोशिया में बहुत सारी डांस स्टाइल है, जैसे कि एक तो गरबा हो गया, फिर कलबेलिया, I taught that. यस, एंड देयर आर सो मेनी Cultural साउथ इंडियन तो है ही। स्टूडेंट्स, तो It's उनके like- अलग तेलुगु थीम्स पे अलग अलग डांसेस होते हैं। क्लासिकल तो हमारा है, मोटिव क्लासिकल में Freestyle भी है, फ्रीस्टाइल भी है, शादी वाला भी है, हिप हॉप भी है। जो अच्छा लगे बच्चों एंजॉय को। करना है, एंजॉय करना है, Enjoy मेन करना। पर्पस ये है। सो मतलब जैसे सेशन कोई भी ले सकता है कि जैसे फर्स्ट ईयर या जूनियर बैच के स्टूडेंट्स भी सेशन ले सकते हैं, या एक प्रॉपर गेस्ट लेक्चर या वैसे ही? नहीं, एक्चुअली एज ही सेड वॉलंटरी बेस्ड पे है। सो हम ये भी कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो अभी तक एक्चुअली बहुत सेशंस ले भी चुके हैं वो भी सेशंस लेते हैं, खुद बोलते हैं तो ठीक है, वरना हम भी बोलते हैं कि तुम सेशन ले लो। ये खुद भी तो ले चुके हैं ये खुद भी ले, हाँ तुम तो खुद ले चुके हो सेशन। सो हम भी लेते हैं, जूनियर्स भी लेते हैं, सो वी आर मेंबर्स। इट्स लाइक हाँ ऑफिशियली हम तो बस हैंडल करते हैं, बट वी एवरीबडी आर जस्ट मेंबर्स राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर हमारे अब आगे के मतलब फिलोशिया के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि फ्यूचर प्लान्स बेसिकली अभी इनसे भी इतनी डिस्कशन नहीं हुई है इस बारे में, बट मैं बता देती हूँ। एक तो हम लोग गेस्ट लेक्चर का प्लान कर रहे हैं अक्टूबर में, देन वी आर थिंकिंग ऑफ कमिंग अप विद MOUs विद 2 मेजर ब्रांड्स, स्पोर्ट ब्रांड्स। उसमें हमारा प्लान ये रहेगा कि सिंस हम लोग हेल्थ एंड फिटनेस को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, तो वो यहाँ पर आएँ, हमारे साथ मेमोरेंडम साइन करें, एंड देन आपके लिए कुछ स्पोर्ट्स फेस्ट हो सकता है, आपको यहाँ बेटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिल सकते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के, ठीक है, ताकि बच्चे जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या जिम के लिए जा रहे हैं तब उनके पास सही चीज़ें हैं। एंड वी आर प्लानिंग दिस फॉर 2 मेजर ब्रांड्स, सो लेट्स सी क्या हमारा रहता है। वी आर इन टॉक्स राइट नाउ विद इट। ओके, सो मतलब जितना मेरा अभी तक समझ में आया है कि फिलोशिया माइंड रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाता है जिससे हमारा स्ट्रेस लाइफ कम हो। तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे डिफरेंट कौन कौन सी माइंड रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज़ है जिससे हमारे और भी जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता चले कि फिलोशिया कैसे एक्टिविटीज़ का पूरा प्रोसेस क्या उसका करवाने का। माइंड रिफ्रेशिंग एक्टिविटी के लिए तो सबसे बढ़िया सेशन हमारा है फन एक्टिविटी सेशन।
ओपन माइक है। Open mic. ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको योगा मतलब ऐसा नहीं कि डांस कर रहे हो तो चलो आपको स्पेसिफिक वे में करना है कि चलो वो जो कंडक्ट सेशन करवा रहा है वो जैसे सिखा रहा है वैसे हमें करना है। बट फन एक्टिविटी एक अलग चीज़ है, आप अपनी मर्जी से कोई भी आइडिया दे सकते हो कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये लास्ट हमारा जो फन एक्टिविटी, यू वर देयर राइट, Yes. फन एक्टिविटी में सो ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं तो गेम्स खेल लेंगे। हाँ जैसे क्राफ्ट सेशंस होते हैं उसमें लाइक जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ऐसे क्या बनाना है, जैसे भी लाइक क्राफ्ट के कुछ भी हो वो सब बनाना एंड देन very sweet cups. कप्स आई स्टिल हैव Holders, देम। yes, I still have them. और अभी वो एक छतरी बना के लेके आए थे बच्चे, श्रीनिधि आई है, श्रीनिधि। हमने फ्रॉक बनाया हाँ, था। frog. ऐसे छोटे छोटे सेशंस होते हैं where you are indulging और interpersonal connections भी बढ़िया हो रहे हैं, ये चीज़ होती एंड है. देन ओपन माइक में होता ही है, ओपन माइक में तो बहुत कुछ है, Stand up. सिंगिंग, स्टैंड अप, पोइट्री, पोएट्री एवरीथिंग इज इन्वॉल्वड। जैसे इस बार फन सेशन में लास्ट वाले हमने डंशराज खेला था, इन एंड आउट भी खेला था। हाँ तो वैसे तो इससे हमारा मेंटल वेलनेस मतलब क्लब उसमें कैसे देखता है मेंटल वेलनेस को सही करने में? सी आई टेल यू, ये मतलब से आप आ रहे हो, ठीक है, आपके सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, सब बैठे हैं, हमें टाइम नहीं मिलता बेसिकली कि एक दूसरे से ज़्यादा इंडल्ज कर सकें, बात कर सकें। लेकिन व्हेन ये एक घंटे के लिए जब आप बैठ रहे हो तब वहाँ पे कोई सीनियर जूनियर कुछ ऐसा बचता नहीं है। बेसिकली यू ऑल आर हेल्पिंग ईच अदर, यू ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग दी सेशन, यू ऑल आर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। तो तुम भी खेल रही हो, वो भी तुम्हारे टीम मेंबर्स हैं। हाँ कुछ टाइम के लिए क्या होता है, बच्चा वहाँ पे अपनी टेंशन, अपना स्ट्रेस, चीज़ों को भूल जाता है। तरीका कोई प्रोसेस हमने ऐसा कोई सेट नहीं कर रखा। द पॉइंट इज़ कि कोई भी लोनली फील ना करे, सबको कुछ ऐसा करने को मिले जो उन्हें पसंद है। तो जो भी मेंबर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनका कोई ना कोई फीडबैक होता है क्लब के टूवर्ड्स, तो आप वो कैसे गैदर करते हो उनसे? सी एक्चुअली इट्स लाइक उसके लिए हम कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ फीडबैक नहीं लेते, बट व्हेन वी आर टुगेदर हम उनसे पूछते हैं लाइक वाज टुडेज सेशन गुड, एंड देयर वी सी लाइक हाँ हैप्पी फेसेस विद हैप्पी रिएक्शंस, दैट्स ऑल फॉर अस। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। बट वी डू आस्क कि वो सेशंस में और क्या चाहते हैं, ठीक है। फीडबैक पे हम लोग बेसिकली ये तो देखते ही हैं कि स्टूडेंट्स आर हैप्पी और नॉट, दे आर उनका कैसा फ्रेंडशिप फॉर्म हो रहा है, ये चीज़ें तो बिल्कुल एविडेंटली दिखती हैं। बट उसके अलावा ये ज़रूर पूछा जाता है कि और कौन से सेशंस आप करना चाहते हो, या आपका ऐसा क्या टैलेंट है जो अब तक हम में से यहाँ पे किसी ने नहीं देखा, कोई सेशन नहीं हुआ है, दैट वी आस्क। एक स्टूडेंट का सबसे बढ़िया फीडबैक मिला था कि जब से फिलोशिया में ज्वाइन किए टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि फिलोशिया में ऐसा नहीं कि तुम लोग सिर्फ डांस सीख रहे हो, क्राफ्टिंग, योगा वगैरह कर रहे हो, तुम लोग एक चीज़ और भी सीख रहे हो जो तुम्हें पता नहीं है कि सिखाते कैसे हैं। सिखाते कैसे? और सिखाते टाइम जो टीचर्स जब क्लास में पढ़ा रहते हैं और हम पीछे से शैतानियाँ करते रहते हैं, टीचर्स को परेशान कर देते हैं, वो सेम फीलिंग जब आप खुद भी करवाओ सेशन कंडक्ट, तब बाकी सारे स्टूडेंट भी आपके साथ वही करते हैं। धर्मेश इज वेरी इरिटेटिंग ड्यूरिंग माय सेशंस, प्लीज। इवन आई रिमेम्बर इनका टॉम एंड जेरी है दोनों, लेकिन इन दोनों के बिना काम चल नहीं सकता। इनफैक्ट सिर्फ ये बच्चे नहीं, हमारे और भी 2-3 बच्चे हैं यहाँ पे, उनके बिना काम चल नहीं सकता। वी आर ए ग्रुप एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी एक ऐसी ग्रुप है। लड़ते भिड़ते हैं और काम भी करते हैं और डांट भी बहुत खाते हैं। ये मुझे कहना पड़ेगा कि यूजुअली आई डोंट इंटरफेयर इन द सेशंस मच, बिकॉज जैसे जिसने कहा कि हम सेशंस कंडक्ट करना सीखते हैं, आइडिया वही है। हाँ। कि आप सीखो कंडक्ट करना, एंजॉय करो। मैं खड़ी रहूँगी तो आधा बच्चा जो जानता नहीं वो तो वैसे ही हो जाएगा कि मैम आ गई, नहीं करना। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो डेडिकेटेड 1 घंटे की स्पेस क्या हो, बच्चे की हो। तो ये तो मुझे कहना पड़ेगा, डांट भी बहुत खा लेते हैं बट बहुत स्वीटली सारा काम कर देते हैं, सारा काम कर देते हैं। और लिटरली ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत प्यार से डांट मारी भी है बहुत अच्छे से मारी, बट दे आर वेरी स्वीट पीपल एंड आई थिंक 1 साल में हम लोगों ने एक दूसरे को समझ गए थोड़ा सा। दे आर लाइक ठीक है, अभी बोल रहे हैं, अभी ठीक हो जाएंगे।
मैं भी कह रही हूँ अभी मैं बोल रही हूँ चलो कर लेंगे, अभी अगर नहीं कोई होगा भी तो हो जाएगा। इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अभी टीचर्स डे गया था, हम्म। तो मैम से बहुत सारी डांट पड़ी थी, बस फिर आखिर में एक ही चीज़ याद करते थे कि जैसे इवेंट खत्म होगी मैम मैम बोलेगी का हाँ। बहुत ही अच्छी इवेंट रही, सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। जितनी बार भी मैम डांटती थी हम ये चीज़ याद कर लेते थे और काम सब हो जाता था। तो कोई आखिरी विचार? वेल जो हमारे क्लब का मोटो है स्वस्थ रहो मस्त रहो। एंड everyone is welcome to join us. We wait for everyone. जितने बच्चे होंगे, जितने टीचर्स होंगे, उतना सेशन हमारा अच्छा होगा and we'll be happy. With this, I would like to thank the Philosophia Club to be here with us and tell us the tips and tricks to maintain a healthy Our lifestyle. pleasure. Thank you.